Friends, I welcome you all in this video session, and we are going to study the very important parts of a speech in English, verb. It is so important that no sentence can be formed without a verb. That means verb is an essential segment of English language. No sentence you can form without the help of verb. Therefore, verb is that part of a speech which is prima facie one of the most important part of a speech in English. Today we are going to learn it. Before I am going to start this lecture, I will request you all to share, subscribe and like the video and forward this video to your friends, nearest and dearest ones. Today let us try to understand what a verb is. Verb is a word which is used to describe the state of an action. The first thing, action. Verb is a word which gives us description of an action. Second one is existence. Existence, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा. एग्जिस्टेंस मतलब कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, अस्तित्व जिसको हम हिंदी में कर सकते हैं. और थर्ड जो होगा एक्टेड अपॉन. एक्टेड अपॉन a noun or a noun equivalent which serves the purpose of a subject. Now let us try to understand what an action is, what existence is, and what is the meaning of this third use of a verb, acted upon a noun or a noun equivalent which serves the purpose of the subject. This third one is related to passive and active voices. This third one is related to passive voice. In grammar, active and passive voice is very much important chapter, and in almost all competitive examination, these passive voice and active voice are generally asked. You will be asked to transform active voice into passive voice and vice versa. Therefore, third one is very much important as far as your competitive exams are concerned. Therefore, we are going to understand these three things: action, existence, and the third one, acted upon, a noun or a noun equivalent. Now, what is an action? Suppose you are going to eat a mango. You are certainly doing some action in your body. You have to open your mouth. You have to put the mango inside and you have to cut it, you pierce it from your teeth. And thereafter you can take the taste of that mango eating. Therefore, let us take one example. Action. Chotu eats a mango. Here we have used a word eats. This word gives some indication about some action done by this Chotu, and Chotu is what? Subject. And the word which is going to describe an action of eating is called verb, and this mango is called object. Therefore, we are concerned with this term eats, which is a verb in this sentence, and this is the first work of a verb in grammar. Second verb is existence.
एग्जिस्टेंस को हिंदी में अस्तित्व कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ऊपर के एग्जाम्पल को लो, छोटू इज ए बॉय। हियर छोटू इज सब्जेक्ट, a boy is noun, and what about this is a verb. What is the meaning of existence? Astitva. Here Chotu is not going to perform some action. There is no action in his body, in his mouth, in his hand or leg, whatever you may call. This word only gives that Chotu has come over this world in the shape, in the life size of a boy, a student, a man. Therefore, this word is taken in category of existence. अस्तित्व के लिए हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब हमारा कभी कभी अस्तित्व बताने के लिए भी यूज किया जाता है, कभी कभी एक्शन बताने के लिए किया जाता है। और थर्ड वन, एक्टेड अपॉन। एक्टेड अपॉन in case of passive voice, my dear students, in case of passive voice we again use verb. Suppose Chotu eats a mango. This is active voice in English, active voice. Suppose we are going to change into passive voice, then a mango is eaten by Chotu. Here this verb is in the past participle form, and therefore this construction is known as passive voice of this active voice. We may call in short PV, passive voice. Here in this case, मैंगो को खाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो खाने का काम जो है, जो वर्ब ईटेन है, V3 जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल इसको हम लोग बोलते हैं। वर्ब का 3 फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन। तो ईटेन और गॉन ये जो है हमारा V3 है, इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ ईटेन जो है ये भी एक वर्ब है। तो हमारा वर्ब जो है 3 तरह से मिलेगा हमारे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सेंटेंसेज में। पहला वो एक्शन बताएगा, दूसरा अस्तित्व एग्जिस्टेंस बताएगा, और तीसरा एक्टेड अपॉन बताएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिफाइनिंग पार्ट, जो हमारी परिभाषा है वर्ब की, उसके बारे में इतनी बातें आपको जाननी होगी। तीनों स्थिति में हमारा वर्ब दिखाई पड़ सकता है। जहां पर जैसी जरूरत होगी तुमको बोलना होगा और उसको लिखना होगा। एक्टिव वॉइस में आपको एक्शन आना जरूरी है, पैसिव वॉइस में एक्टेड अपॉन आना जरूरी है, और उसके बाद एग्जिस्टेंस। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्ब कितने तरह का होगा? तो पहले नोमेनक्लेचर के आधार पर, पहले क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्ब 2 तरह का होगा। वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में तुम बोल सकते हो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसको तुम इंट्रांजिटिव को बोल सकते हो अकर्मक क्रिया। In English language, in first classification, verb is classified into 2 kinds. First is known as transitive verb, second is known as intransitive verb. In case of transitive verb, a verb will take an object. Objects are of 2 types. Objects are of 2 types. First is called direct object, second is called indirect object. This is quite difficult to understand. Which object is direct object,
which one is indirect object. It is not an easy task. In most of English grammar books, it is laid down that direct object is an article, an object, a body, वस्तु, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मनुष्य होगा. लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. हम साधारण बोलचाल की भाषा में किताबों में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनुष्य होता है. लेकिन ये हर जगह सही नहीं है. ठीक है. जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने कहा कि द ऑब्जेक्ट which receives the direct effect of verb by the subject. Here indirect object receives indirect effect on it by the subject. Let us try to understand it. What is the difference between direct and indirect object, and in what way Hindi English grammarians, in Indian English grammarians are somewhat confused while distinguishing between direct object and indirect object. Let us take one example. Chotu killed a snake. Chotu is subject, killed is verb, snake is object. Chotu will take some weapon, है ना, टेक सम sword ले सकते हो कोई भी चीज, उससे स्नेक पर वार करेगा. तो इफेक्ट इस वर्ब का किस पर पड़ेगा? स्नेक पर पड़ेगा. और ये डायरेक्ट पड़ेगा, बीच में और कोई आदमी इसमें नहीं है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. In this case, the verb we have used will be transitive verb. This verb will be transitive, सकर्मक क्रिया होगी. Let us take one more example. मान लो कि छोटू एक किताब लिया और, है ना, उसने उस अपने दोस्त को जो प्रकाश है उसको एक किताब को दिया. ठीक है. यहां पर छोटू एक किताब को किसको देता है? प्रकाश को. इस क्रिया में, इस प्रोसेस में छोटू हमारा सब्जेक्ट होगा. लेकिन छोटू उस किताब को पहले छुएगा, सब्जेक्ट जिस चीज को पहले छुएगा, बुक को, तो बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और बाद में बुक को हैंड ओवर करेगा प्रकाश को, तो प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. तो छोटू गेव ए बुक टू प्रकाश. यहां देखो बच्चों, छोटू सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है, जो चैप्टर तुम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो. अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक बुक ऑब्जेक्ट है और एक प्रकाश ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसको टच करेगा? बुक को. इसलिए बुक हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में जाएगा किसके पास? प्रकाश के पास. तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो किसको पकड़ा पहले? सब्जेक्ट ने बुक को उठाया, टच किया, इसलिए डायरेक्ट. बुक को फिर उसके हाथ में पकड़ाया, है ना, तो किताब जाकर के प्रकाश के पास चली गई, इसलिए प्रकाश हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरह से अगर ऑर्डर चेंज कर दो, देखिए बड़ी एक अच्छी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. अगर इस IO को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के पास ले आवे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहां ले जाएं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास. इसको हमें कहां ले जाना है? इसके पास. और इसको हमें कहां ले आना है? इसके पास.
तो ये जो बीच में बेटा प्रीपोजिशन आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। तो दो तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब में यूज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। छोटू गेव प्रकाश, मैंने पलट दिया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने कहां ला दिया, यहां ला दिया। अब यहां पर प्रीपोजिशन जो हमारा था ये खत्म हो जाएगा। प्रीपोजिशन हटा दो। छोटू गेव प्रकाश अ बुक। अब देखो प्रकाश आ गया, बुक आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, नो प्रीपोजिशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू यूज ए प्रीपोजिशन, you have to put direct object earlier and later on you have to put indirect object. If you are going to change the order of direct and indirect object, indirect object is placed earlier and direct object is placed later on, then no preposition will be used. Note, you can write note, if IO precedes DO, no preposition will be used. ठीक है? This was the transitive form of verb and its use regarding direct object and indirect object. Direct object can come alone, but if you want to use indirect object, it will never come alone. To use indirect object, it is essential that you must have a direct object. Suppose you have only indirect object, no sentence can be formed. Therefore, to use indirect object, already we must have direct object. अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ में प्रयोग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेले भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी अकेले यूज नहीं होगा। ये हमारा चेंजेस था, ये हमारी डिफिकल्टी थी। अब आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए राम रन्स, राम सब्जेक्ट, रन्स वर्ब। ठीक, तो ये रन्स हमारा कौन से, कोई ऑब्जेक्ट आया बच्चों? कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए यहां पर ये जो है इनट्रांजिटिव है। अगर किसी वर्ब के बाद कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वर्ब इज क्लासिफाइड एज इनट्रांजिटिव वर्ब। इन हिंदी वी मे रीड और कॉल अकर्मक क्रिया। देयरफॉर रन इज अकर्मक क्रिया। सम नोट, an intransitive verb can also be made transitive. What I am going to tell? An intransitive verb can be changed into transitive by using an object. Let us take the previous example. In previous example, in sentence Ram runs, runs was what? Runs was intransitive verb. Intransitive verb. How can you make this run transitive? The question arises. हमें क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, छोटू runs his horse. अब देखो यहाँ पर छोटू क्या कर रहा है? अपने नहीं दौड़ रहा है, किसको दौड़ा रहा है? अपने घोड़े को दौड़ा रहा है। तो हिज हॉर्स क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और रन्स तब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा।
छोटू तो हमारा सब्जेक्ट था ही। अब समझ में आ गया। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसको ट्रांजिटिव कभी कभी बना सकते हैं। क्या करना होगा, इसका मीनिंग थोड़ा चेंज करना होगा और एक ऑब्जेक्ट लगाना होगा। जैसे छोटू ran a needle into his finger। जैसे सुई से तुम कुछ काम कर रहे हो, है ना। छोटू ने एक निडिल को अपने उंगली में घुसेड़ दिया। अब यहाँ पर रैन हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रैन क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। छोटू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। निडिल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हिज फिंगर क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। निडिल को पहले पकड़ा और उंगली में घुसेड़ा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम समझ पाए हैं कि पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा वर्ब का है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो, प्रकाश इज ए स्टूडेंट। अब बताओ बच्चों, बताओ यह वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ए स्टूडेंट है इज का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और प्रकाश क्या है, सब्जेक्ट है, और ए स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कि यह प्रकाश है क्या भैया। अगर हम ए स्टूडेंट को मिटा दें, रब आउट कर दें, तो प्रकाश इज कद्दू, कोड़ा, पेन, पेंसिल, बुक नहीं, तो एक वर्ड हमने डाल दिया, विद्यार्थी। तो ये ए स्टूडेंट कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यह ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, बल्कि यह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, पूरा कर रहा है, प्रकाश के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वह है क्या। इसलिए यहाँ पर इज जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव क्लियर द ट्रांजिटिव एंड intransitive forms of verb, and in next video we will proceed towards the classification of second type, in what way verb can be classified differently. Thanks all, and again I request you to share, है ना, subscribe and follow the video. Thanks.